It's been absolutely amazing. I was approached back last year by the executive producer, and he sent me the script and discussed a little about the role. And as soon as I read the script, I knew this was a role that I needed to be part of. And also, when I met the team for the first time, I knew I made the right decision because they're such a wonderful team. But I'm so excited about the role and also the film Be Positive because it has an international market. I believe people can relate to the movie, not just in India, but in the US, in the UK. So that was very much why I entered into this film. Okay, how do you feel when you come from Hollywood to Bollywood? Yeah, I see the difference being in Bollywood. Obviously, the delivery of my performance has to be different. How you work as well is so fascinating. It's very fast-paced. We've done a lot with the films, and we've filmed in many countries and had many flights in a short space of time. Ms. Nivedita, how do you feel from Bollywood or India to Hollywood? Yeah, I'm feeling truly fortunate to get this opportunity, and it's a very good team I ever seen. I'm very happy. Okay, what's to be your the part. role in this? I'm an actress in this movie, and my name is Scarlett. And my part is like a Chinese girl, and I acted as a modern girl. Okay. Yeah. Samira, what would you like to say about your role in this film? My role in the film is actually an international girl from the UK. Her name is Nina, and I could relate to her. She has a past which I could relate to, and also a future I could relate to as well. But there was a few moments in the script which were really fascinating also, so just watch and see. Definitely. How was working with the Indian people? I love India. Like I said, it's not my first trip to India. I really love your food, your climate, your culture. I feel I'm Indian now because I've spent so much time with this team. We've become more of a family, and I couldn't wish for better co-stars as well. But I've had a lot of support in understanding more about Bollywood industry and your stars and just your media, and it's very good. Ms. Nivedita, how was your experience working with your co-stars? My co-stars was very, very nice, very sweet, Samira and Raz as well, very cooperative, friendly. They are very supportive, supported a lot. I'm very happy to work with them. Okay, tell me about your experience working with Mr. Venkatesh Kumar. Because of him, all credit goes to Venkatesh sir. I'm truly feeling fortunate to get this opportunity, and very much thankful to him. This is my very first movie in Bollywood. Anything else you want to say? Nothing much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सर आपको किसने इंस्पायर किया कि आप मतलब हॉलीवुड में? वो इंस्पायर नहीं है। जब से मूवी फील्ड में आया हूँ और मूवी फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया, मूवी फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया, तो हॉलीवुड फिल्म देखते देखते बड़े हुए हम लोग। बॉलीवुड भी देखा है पूरा। सबका ड्रीम होता है कि एक ना एक दिन मैं हॉलीवुड में बनाऊँ। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वो क्या बोलते हैं, सर्कस करना पड़ता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ट्राई किया और स्क्रिप्ट पे ऐसा ही एक स्क्रिप्ट मिला, उसकी वजह से आज ये साकार हो रहा है। तो वेरी ये थॉट कब माइंड में वही बी पॉजिटिव जो है, वही बी पॉजिटिव से आज हम लोग इधर है। तो ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं, जो भी करते हैं, कुछ भी करें,
बी पॉजिटिव सोच के ये साकार हो सकता है करके ऐसे किया तो 100% मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ये मेरा आशा है। स्क्रिप्ट की अगर बात करूँ तो कितनी पावरफुल सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आज की जितनी भी फिल्म आ रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देके जा रही है। मैसेज नहीं, स्क्रिप्ट ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए बना जैसा है, लेकिन इट्स रिलेटेड टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड। इट्स अबाउट द पीपल, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, दिस पीपल. It's not about the people. It's about the blood is the same thing actually. Everybody knows that. All human beings has a blood. The group is different, but the blood is the same. So somewhere it connect to everybody. So that's the thing. क्या होगा फिल्म का? USP मतलब स्टोरी ऐसा है कि देखो एशियन कॉन्टिनेंट्स है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका तक और इंडिया मिला के ये पूरा वर्ल्ड तक घूम सकता है, इसलिए एक हॉलीवुड मूवी बनाने का हमने सोचा है। कहाँ का शूट? एक्चुअली थोड़ा बहुत गोवा में शूट किया, साउथ अफ्रीका में कुछ बनाया। अच्छा, लंदन का शूट बैलेंस है, तो वी आर मिडल ऑफ द शूटिंग एक्चुअली। आपसे अगर बात करें भी पॉजिटिव की, जब आपको ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई तो पहला थॉट क्या था? एक्चुअली जिस हिसाब से मैंने बताया था, मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ, मैं थिएटर मतलब स्ट्रगल इतना कर चुका हूँ कि यहाँ तक पहुँचने का तो मैंने कभी मतलब ख्वाब भी नहीं देखा था। तो अभी तक यहाँ तक पहुँचने का अगर मौका दिया है तो मेरे ख्याल से कुछ ऊपर वाले को ही मंजूर था कि बाबा ये मतलब बंदे को कहीं पे पहुँचाना है, तो उस तरीके से मैं मतलब पहुँच तो गया वहाँ पे। पर शुरू में जितने भी परफॉर्मेंस वगैरह जैसे होता है, हॉलीवुड फिल्म में आप देखते हो तो जिस तरीके से हमारे हिंदी इंडस्ट्री में या साउथ की इंडस्ट्री में जितनी भी मतलब परफॉर्मेंस होती है, जिस हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते हैं या थिएटर में जैसे जैसे परफॉर्मेंस किया जाता है, तो हमें ज़्यादा हमको हैमिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे चेहरे पे इंडियन एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा होते हैं। जैसा आप देखते हो कि हमेशा मतलब इंडियन एक्सप्रेशन में ज़रा हैमिंग ज़्यादा होता है। और जिस हिसाब से मैं अभी समीरा के साथ जो काम कर रहा हूँ, एंड शी इज़ अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, तो हॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बावजूद जिस हिसाब से मेरे परफॉर्मेंस में जो एक हफ्ते के दरमियान जो उसने मेरा परफॉर्मेंस देखा, उसको पसंद नहीं आया वो परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें हैमिंग ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ की उनको आदत नहीं है। तो उसने मेरे को एक हफ्ते से उसने मेरे को ट्रेन किया, समीरा ने बोला कि बाबा जिस हिसाब से एक्सप्रेशन दिखाते हो, जिस हिसाब से हैमिंग वगैरह होता है, वो चीज़ हमारे हॉलीवुड में नहीं चलती। तो उसने मेरे परफॉर्मेंस पे, मेरे एक्सप्रेशन पे कंट्रोल किया। तो उसने एक हफ्ता, मुझे इतना तकलीफ हुआ परफॉर्म करते वक्त, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, जो भी बॉडी लैंग्वेज जो भी था, जिस हिसाब से एक हफ्ते में उसने मेरे को रेडी कर दिया, तो उस हिसाब से तब जाके मेरे हाथ पाँव ज़रा उठना कम हो गया। और एक्सप्रेशन मैंने नॉर्मल, जैसे हॉलीवुड की फिल्में उनके एक्सप्रेशन इतने नॉर्मल और इतने माइल्ड आते हैं, बस सामने वाले को उस तरीके से समझ जाता है। तो वो सारी बारीकी मतलब मैं सीख चुका हूँ समीरा से। तो अभी इसके अलावा और एक उसके साथ और एक फिल्म कर रहा हूँ, फाइट बैक। वो भी एक बड़ी फिल्म है जो तनाबी फिल्म्स जो समीरा की खुद के प्रोडक्शन की है। तो अभी मेरे परफॉर्मेंस देखने के बाद उसने मुझे फाइट बैक के लिए साइन किया है, जिसमें बहुत बड़े स्टार कास्ट है। ड्वेन जॉनसन है जो द रॉक के नाम से जानते हैं, और जेसन स्टैटम जो ट्रांसपोर्टर में जो काम कर चुके हैं 1, 2, 3 में, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मतलब हॉलीवुड के बाद ये दूसरी फिल्म भी मुझे मतलब मेरे नसीब से मिल गई है। तो एक हॉलीवुड के बाद दूसरी है, तो उस तरीके से हो सकता है मेरे परफॉर्मेंस में इतना निखार आया हो, तो उस हिसाब से सामने वाले को ऐसा लगा हो कि बाबा चलो ठीक है, ये कुछ और इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, तो वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। बी पॉजिटिव की अगर बात करें तो किरदार की अगर आपकी बात करें तो किस तरह का पूरा किरदार अपने आप में ढाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म बी पॉजिटिव है, इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर। ये एक रोमांटिक थ्रिलर है। तो थ्रिलर मतलब आपको मतलब एक जो बंदा थिएटर में आएगा, और थ्रिलर मतलब एक कुछ उम्मीद लेके आएगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होना ही होना है। तो यही ट्विस्ट आपको 15 दिन में हर एवरी 15 मिनट्स कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट यहाँ पे डाले गए कि सामने वाला बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है, अरे ये मतलब उस तरीके से मतलब वो ट्विस्ट दिखाया गया है। तो उतना हम लोगों ने मतलब मैक्सिमम स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। परफॉर्मेंस तो ऑटो में ये जो सर ने हम लोगों से जो मेहनत कराया तो वो तो कराया, समीरा का जो सपोर्ट है वो हिसाब से वो तो है ही है, मगर जिस हिसाब से स्क्रिप्ट में जो मेहनत की है, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, भले ही मैं इस फिल्म में लीड किरदार कर रहा हूँ, मगर इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो फिल्म की स्क्रिप्ट ही बी पॉजिटिव की हीरो है। तो वो उस तरीके से स्क्रिप्ट का जो जितना मतलब एक मतलब क्रिस्पीनेस दिया हुआ है। अगर इसमें सॉन्ग भी जो डाला गया है तो वो स्टोरी के साथ ही चलता है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होता है, कहीं पे आदमी बोर नहीं होता, एंड तक कुर्सी से चिपका रहेगा कि बंदे को देखना है कि लास्ट में क्या हो रहा है। उस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को बरकरार रखा है।
सर या अगर बात प्लानिंग टू रिलीज इन समर एक्चुअली ये अप्रैल में प्लान कर रहे हैं हम लोग